سلام پاکستان، ہیڈ لائنز آپ نے جانی 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں رخبہ عرفان ملک، میں ہوں ابوذر محسن اور میں ہوں ہدا شاہ۔ آپ ہمیں یوٹیوب پہ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں youtube.com/24newshd۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاک ایران بارڈر پر باڑ لگانے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ سرحد کی مینجمنٹ کے لیے نئی فرنٹیئر کور تشکیل دی ہے۔ کمان کا ہیڈ کوارٹر تربت میں قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 15 سے 20 دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ لوگوں کو شناخت کر کے قتل کیا گیا، ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان ایران کے بارڈر ریجن سے 15 سے 20 دہشت گرد داخل ہوئے۔ پاکستان کی سرحد کے اندر بسز تھیں، ان کو روکا۔ بسز کو روکنے کے بعد لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا۔ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد 14 پاکستانیوں کو شہید کیا گیا۔ آبویسلی ہمیں اس کا بے پناہ دکھ ہے۔ ایران اور پاکستان نے باہمی مشاورت سے طے کیا کہ ہم بارڈر کو پیسفل رکھنے کے لیے، مین کرنے کے لیے اور ایسے عناصر کے ناپاک عزائم سے محفوظ کرنے کے لیے ہم جوائنٹ بارڈر سینٹرز بھی بنائیں گے۔ چیزوں کو تدارک کے لیے ہم اپنے اس بارڈر کو فینس کریں، جس طرح ہم پاک افغان بارڈر کو فینس کر رہے ہیں۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے 24 مئی کو ہی بجٹ پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سیکرٹری خزانہ کو میڈم ٹرم اسٹریٹجی پیپر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ریونیو اور اخراجات کم کیے جانے پر بات ہوئی ہے۔ 30 اپریل کو کابینہ اجلاس میں میڈیم ٹرم اسٹریٹجی پیپر بجٹ کے بارے میں بھیجا جائے گا۔ حفیظ شیخ نے مزید کہا کہ IMF کے ساتھ مذاکرات پر ان سے بات کی ہے، وہ آگے بڑھائیں گے۔ میں آج صبح یہاں آیا ہوں اور پہلی 2 اہم چیزوں کے اوپر جو ارجنٹ ہیں ان پہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ بجٹ، اس کے لیے جو میڈیم ٹرم اسٹریٹجی پیپر ہوتا ہے بجٹ کا، جو کہ بنیاد ہوتا ہے بجٹ بنانے کے لیے، اس کے اوپر میں نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ وہ کس طریقے سے بنایا جائے، اور ریونیو اور ایکسپینڈیچرز کے جو آئٹمز ہیں ان کو فائنلائز کیا ہے، اور یہ بھی طے کیا ہے کہ یہ میڈیم ٹرم اسٹریٹجی پیپر کیبنٹ میں 30 تاریخ کو پیش کیا جائے اور ان کی اپروول لی جائے۔ دوسری چیز جو ہمارے IMF کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اس کے سلسلے میں نے IMF کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے بات کی ہے اور ان کو اپنی گورنمنٹ کی طرف سے کمٹمنٹ دی ہے کہ ہم ان مذاکرات کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی طرف سے اس پروگرام کے بارے میں کمٹمنٹ دی ہے۔ تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو مشن ہے IMF کا وہ جلد آئے، اور آج شام میں ان کے جو ڈویژن چیف ہیں ان سے بھی بات کروں گا، اور انشاءاللہ اس پروسیس کو ہم ایکسلریٹ کر کے کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے انٹرسٹ۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ عمران خان خطرناک گلی میں گھس رہا ہے۔ عمران خان کو سخت صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسد عمر کا ہٹانا اپوزیشن کا موقف درست ہونے کا ثبوت ہے۔ چوہدری نثار اور غلام سرور خان ایک ہی پارٹی میں چل ہی نہیں سکتے۔ چوہدری نثار کے کردار اور سیاست کو جانتا ہوں۔ چوہدری نثار نون لیگ میں رہ کر PTI کا حصہ بننے جیسی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ وہ اسلام آباد میں بات کر رہے تھے۔ سرور خان ہے، ایک بہت اچھا ورکر ہے، اس نے ڈیلیور بھی کیا۔ چودھری نثار کے لیے راہ ہموار تو نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں چودھری نثار کو اگر وہ لائیں گے تو سرور خان تو پہلے ہی اس کی پوزیشن ہے۔ سرور خان اور چودھری نثار تو کبھی چل نہیں سکتے ایک ہی پارٹی کے اندر، مگر میں نہیں سمجھتا، یہ بات میں بڑی واضح طور پہ کہتا ہوں، چودھری نثار کو میں جانتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس کے کریکٹر کو بھی جانتا ہوں، اس کی سیاست کو بھی جانتا ہوں۔ وہ اتنی گھٹیا حرکت نہیں کریں گے کہ مسلم لیگ میں رہ کے PTI کا حصہ بنے۔ جو شخص پہ انحصار تھا ان کا اسد عمر پہ، اور یہ بڑی دعوے کر رہے تھے کہ اکانومی بالکل ٹھیک ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، کچھ نہیں ہے، اور اس بات کا پھر ثبوت مل گیا
کہ اپوزیشن جو کہتی تھی وہ ٹھیک کہتے تھے. عمران نے آج تک پارلیمنٹ کو مانا ہی نہیں ہے, تسلیم ہی نہیں کیا, تو وہ جائے گا ایک خطرناک گلی میں گھس رہا ہے. وہ اس کو بڑا سختی اس کو سامنے آئے گی. اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے وفاقی کابینہ میں رد و بدل کے بعد کپتان نے خیبر پختونخوا میں بیٹنگ آرڈر تبدیل کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا. وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ محمود خان کو کارکردگی نہ دکھانے والے وزراء کو آرام کرانے کا مشورہ دے دیا. ٹیم تبدیلی سے بھی کارکردگی بہتر نہ ہوئی تو پھر وزیر اعلیٰ کو بھی چھٹی کرائی جا سکتی ہے. بات کریں گے بیورو چیف پشاور عالمگیر خان سے. عالمگیر بتائیے گا خیبر پختونخوا کابینہ میں کون کون سے کھلاڑیوں کو تبدیل کیے جانے کا امکان ہے؟ جی بالکل, وفاقی کابینہ میں رد و بدل کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی اپنی ٹیم پر نظر رکھنے کا پیغام دیا ہے. ذرائع کے مطابق اس حوالے سے وزیر اعلیٰ کی عمران خان کے ساتھ چند روز پہلے ایک ملاقات بھی ہوئی تھی. اس ملاقات میں بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو یہ گرین سگنل دے دیا گیا تھا کہ وہ صوبے میں اپنی ٹیم میں اچھے کھلاڑیوں کو شامل کرنے کے لیے ان کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ صوبے میں جو ایم پی ایس ہے پی ٹی آئی کے, ان میں جو اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں ان کو ٹیم میں شامل کیا جائے, جبکہ جو وزراء اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے ان کو ہٹانے کا بھی ان کو گرین سگنل اور اختیار دے دیا گیا ہے. لیکن اچھے کھلاڑیوں کی ٹیم میں شامل کرنے کے بعد بھی اگر کارکردگی بہتر نہیں ہو سکی تو پھر صوبے کے کپتان کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے. اور اس کے حوالے سے جو ہے مشاورت جو ہے وہ جاری ہے اور جلد ہی اس حوالے سے ان کی وزراء کی کارکردگی جائزہ لینے کے لیے جو ہے اس پر مشاورت کی جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے وزراء کے یہاں جو موجودہ وزراء ہے ان کے مستقبل کا بہت شکریہ عالمگیر خان آپ کا. خبر آپ کو دیں گے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس کچھ دیر میں ہوگا. اجلاس چیئرمین سیکریٹریٹ بنی گالہ میں طلب کیا گیا. اجلاس میں پارٹی ترجمان شرکت کریں گے. بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز ولید چودھری سے جو اس وقت بنی گالہ میں ہی موجود ہے. ولید بتائیے گا اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے, کب آغاز ہوگا اور کون کون شرکت کرے گا اس اجلاس میں؟ جی بالکل, دیکھیں جو وزیر اعظم عمران خان نے آج جو بنی گالہ میں ان کی رہائش گاہ ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کا جو سیکریٹریٹ ہے, اس میں ایک اہم جو بیٹھک ہے وہ طلب کی ہے. اور اس میں جو سینئر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, جس میں وزراء بھی ہیں, جس میں جو خاص طور پر ہمارے ذرائع میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو دونوں صوبوں کے گورنرز ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں, جس میں گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا شامل ہیں. اس کے علاوہ اب تک کی اگر آپ بات کریں تو اس وقت جو مشیر خزانہ ہیں عبدالحفیظ شیخ وہ بنی گالہ پہنچ چکے ہیں. اس کے علاوہ جہانگیر ترین سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو موجودہ وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک وہ بھی اس وقت بنی گالہ میں موجود ہیں. فیصل جاوید جو وہ بھی اس وقت بنی گالہ میں موجود ہیں. جو اجلاس ہوگا وہ اس وقت اس لیے ایک اہم نوعیت کا اجلاس اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جو گزشتہ 2 روز پہلے جو وفاقی کابینہ میں رد و بدل کیا گیا, اس کے بعد جو اطلاعات ہیں کہ جو صوبائی جو کابینہ ہے جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے اس میں بھی جو تبدیلیاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں. تو اگلا جو لائے عمل ہوگا وزیر اعظم کا, اس حوالے سے جو سینئر قیادت ہے, جو وزراء ہیں, ان کو وہ آگاہ کریں گے کہ ان کا اگلا پلان کیا ہے, وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے جو سینئر قیادت ہے اس کو اعتماد میں لیں گے. اور اب تک جو کیا وہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں, اس کی وجوہات کیا تھیں, کس کی کیسی پرفارمنس رہی وزیر کی, تو اس حوالے سے بھی جو سینئر قیادت ہے, جو وزراء ہیں, ان کو بھی وزیر اعظم کی جانب سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ کس وزراء کی جو کارکردگی ہے وہ کیسی رہی اور کس وجہ سے جو ہے وہ اس کو عہدے سے ہٹایا گیا, قلمدان واپس لیا گیا. دوسری طرف جو سابق وزیر خزانہ اسد عمر ہیں وہ چونکہ اس وقت کراچی میں موجود ہیں, وہ اس اجلاس میں جو ہے وہ شرکت نہیں کریں گے. اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو آئندہ جو ہفتہ نیا شروع ہوگا پیر سے, تو پیر یا منگل کو وہ اسلام آباد واپس آئیں گے اور اپنی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کا دوبارہ سے آغاز کریں گے. دوسری طرف جو جس طرح آپ نے بات کی کہ اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے,
تو जो अब तक की वफाकी काबीना में तब्दीलियाँ की गई उन अवामिल पर जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। अगर इसमें इस इजलास में जो दोनों गवर्नर्स हैं सूबों के, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी तरफ से जो है वो ये इम्कान का इज़हार किया जा रहा है कि वो दोनों भी इस इजलास में जो है वो शिरकत कर सकते हैं। तो उस इजलास में जो खैबर पख्तूनख्वा और जो पंजाब में जो काबीना की तब्दीली है उस पर भी जो है वो गौर व गौस किया जाएगा। मुख्तलिफ जो अमूर हैं उन पर भी तबादला ख्याल होगा। तो जो मुशीर ख़जाना है उन्होंने हमारे ज़राए में ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से जो है वो मुलाकात की है। उस मुलाकात में जहांगीर तरीन भी शरीक थे। इसके अलावा दीगर जो सीनियर रहनुमा इस वक्त बनी गाला में मौजूद हैं वो भी उस मुलाकात का हिस्सा थे। तो जो डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख हैं उन्होंने जो मुस्तकबिल में उनका जो प्लान हो सकता है, जो कहा कि गवर्नर्स भी शिरकत करेंगे, जानना ये चाहेंगे कि क्या खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर इस वक्त बनी गाला में ही मौजूद हैं? जी अभी तक जो इस वक्त बनी गाला में जो सीनियर क़यादत या जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पहुँचे, उनमें जो जहांगीर तरीन है, परवेज़ खटक हैं, इसके अलावा फैसल जावेद बनी गाला में मौजूद हैं। इसके अलावा जो मुशीर ख़जाना जो गुज़िश्ता रोज़ी उन्हें जो है वो मुशीर ख़जाना बनाया गया डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को, वो कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे। उनकी वज़ीर आज़म से जो है वो इस वक्त इजलास से पहले ही जो है वो मुलाकात हुई है। क्या खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला पंजाब भी इस वक्त बनी गाला में मौजूद हैं, उनकी भी शिरकत मुतवक्के है इस इजलास में? देखें, जैसा कि मैंने पहले आपको ये बताया कि अभी चूँकि 4 बजे का वक्त इजलास का रखा गया है और अभी अब से कुछ देर बाद हमें ये जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि कुछ देर बाद ही जो सीनियर हैं, वफाकी वज़रा हैं और जो दीगर सीनियर रहनुमा, जिसमें इस चीज़ के इम्कान का भी इज़हार किया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि जो दोनों गवर्नर्स हैं वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। लेकिन दोनों सूबों के वज़राए आला की शिरकत के हवाले से अभी तक जो आना है या नहीं आना, इस हवाले से अभी तक जो कोई इतला है वो तस्दीक के साथ जो है वो हमें अभी तक नहीं मिली। लेकिन गवर्नर के हवाले से ये बात ज़रूर सामने आई है कि वो जो दोनों गवर्नर्स हैं, गवर्नर शाह फरमान और चौधरी सरवर, वो दोनों जो है वो इस इजलास में शिरकत कर सकते हैं। और जिस तरह 4 बजे इस इजलास का आगाज कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया वली चौधरी, आपने हमें तफसीलान आगाह किया। बताएं, सोशल मीडिया पर पीटीआई के लिए सरगर्म कारकुन डॉक्टर फरहान विर्क ने अब असद उमर पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं। अपने एक वीडियो पैगाम में फरहान विर्क का इल्जाम है कि वजारत से हटाए जाने के बाद असद उमर ने इमरान खान के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी हैं और अरकान असेंबली को साथ मिलाकर वज़ीर आज़म के खिलाफ ब्लॉग भी बनाना चाहते हैं। आपको बताते चले ये सूरत हाल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सरगर्म कारकुन है डॉक्टर फरहान विर्क, अब असद उमर पर इल्जाम आयद करने शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज में लेकर आया हूँ आप सबके सामने। असद उमर साहब के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बात की थी बिल्कुल ठीक है। कोई भी सहाफ़ी, कोई भी मीडिया चैनल कंफर्म कर ले, असद उमर साहब ने पिछले कुछ देर में कराची के बहुत से MNAs, MPs और ये बहुत से हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वफाकी, उनके साथ रब्ते किए हैं और ये चाहते ही हैं कि किसी तरीके से पार्टी में इनकी इजारादारी कायम हो जाए। इमरान खान के खिलाफ भी साजिशें तैयार हो रही हैं। असद उमर से पूछें क्या इसने उन MNAs, MPs से रब्ता किया या नहीं किया, क्या इसने उन वजीरों से रब्ता किया या नहीं किया। मुझे भी कुछ वजीरों की कॉलें आ चुकी हैं, तो मेरा इंशाल्लाह जो शो भी आ रहा है उसमें इसकी पूरा जो इन्होंने वजारत ख़ज़ाना में किया पोस्टमार्टम होगा, आप खुद फैसला करेंगे। लेकिन मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, इमरान खान के लिए मैं खड़ा था पहले दिन से। किसी को इमरान खान को हम ब्लैकमेल नहीं करने देंगे, चाहे वो असद उमर हो, चाहे वो तरीन साहब हो, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हो, कोई पीटीआई का लीडर आ जाए, इनकी इतनी औकात नहीं कि इमरान खान के बगैर ये वजीर बन सकें। हम इमरान खान के साथ खड़े थे और साथ रहेंगे। और असद उमर साहब ये कूक करने की आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपकी कोशिश नाकाम होंगी। आपको पहले मेरे से गुजरना पड़ेगा, फिर आप इमरान खान के खिलाफ कुछ करेंगे। शुक्रिया। दूसरी जानकारी को बताएं, कराची के समुद्र में लापता 24 माहीगीरों का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका है। 2 माहीगीरों की लाशें मिल चुकी हैं। अहले खाना का कहना है कि हुकूमत तलाशी ऑपरेशन में मजीद तेजी करे। दाना सैयद की रिपोर्ट देखिए। मछली का शिकार करने के लिए जाने वाले 26 माहीगीर शिकार के लिए गए और वापस नहीं आए, जबकि 2 माहीगीरों की लाशें जरूर मिली। लापता माहीगीरों के अहले खाना का कहना है कि हुकूमत इनके प्यारों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज करे। 2-3 साल से मेरा दामाद है, चाचा का बेटा है, बीबी मेरे साथ है ना, 4 साल से।
हमारे साथ है मेरे दामाद। तर्जुमान फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का कहना है कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं कि माहीगीर भारत पहुंच चुके हैं और इस मामले पर भारत से सरकारी तौर पर कोई इतला मौसूल नहीं हुई। 26 थे, 2 की लाशें मिल चुकी हैं, 24 लापता हैं और सरकारी इदारे जो हैं वो हमारे राब्ते में हैं। हमें कोई ऐसी इतला मौसूल नहीं हुई कि कोई माहीगीर जो है वो इस हादसे के दौरान इंडिया के हुकाम के हवाले किया गया हो, क्योंकि सरकारी इदारे भी आपस में राब्ते में हैं। वजारत दाखिला जो है, वजारत खारजा, वो बाकायदा एक दूसरे को इतला दी जाती है। जब भी कोई इस तरह के अगर हमारी तरफ आते हैं तो हम उनको इतला करते हैं कि जी इतने लोग आपके हमारी तरफ हैं। लापता होने वाले माहीगीरों की तलाश का काम जारी है और किसी भी मालूमात के लिए इमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया गया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। कैमरामैन शौकत अली के हमरा दानियाल सैयद, 24 न्यूज़ कराची। तो कराची साहिल से मछली के शिकार के लिए जाने वाले माहीगीरों का 1 हफ्ते से ज़ायद गुजर जाने के बावजूद कुछ पता नहीं चल सका है। तर्जुमान फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुताबिक 24 माहीगीर लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए तमाम इदारे मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। मजीद इस पर सूरत हाल क्या जानेंगे दानियाल सैयद से। दानियाल बताएगा कहाँ तक पहुँचा ये ऑपरेशन? जी बिल्कुल, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब कराची के साहिल से शिकार के लिए जो माहीगीरों की लॉन्चें निकली थी वो तेज़ हवाओं तूफ़ान के बाइस जो है लापता हुए माहीगीर, तकरीबन 26 माहीगीर 3 लॉन्चों में जो सवार थे वो लापता हुए थे डूबकर, जिनमें से 2 अफराद की लाशें जो हैं वो मिल चुकी हैं। अब भी 24 माहीगीर जो हैं लापता हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिशरी पर, कराची फिशरी पर, और वहाँ पर लापता माहीगीर के अहल खाना यहाँ पर मौजूद हैं, फिशरी हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं। रहीम नामी माहीगीर था जो उस बदकिस्मत लॉन्च में सवार था जिसके बारे में अब तक कुछ नहीं दरियाफ्त हो सका। उसकी वालिदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अम्मा ये बताइएगा, रहीम आपका बेटा कितने साल से काम कर रहा था? 2-3 साल से। मेरा दामाद है, चाचा का बेटा है, बीबी मेरे साथ है ना, 4 साल से हमारे साथ है मेरा दामाद। अच्छा, इसके कितने बेटे हैं रहीम के? 2 या क्या बेटा है, एक इसका बड़ा बहन है, 2 इसका छोटा है, एक बहन भाई है। फिशरी तर्जुमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। सिद्दीक साहब ये बताइएगा कितने माहीगीर हैं मजमूई तौर पर? 26 थे, 2 की लाशें मिल चुकी हैं, 24 लापता हैं और सरकारी इदारे जो हैं वो हमारे राब्ते में हैं। हमें कोई ऐसी इतला मौसूल नहीं हुई कि कोई माहीगीर जो है वो इस हादसे के दौरान इंडिया के हुकाम के हवाले किया गया हो, क्योंकि सरकारी इदारे भी आपस में राब्ते में हैं। ये बताएगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि हफ्ता गुजर गया है इस बात को? रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लॉन्चेस के ज़रिए भी हो रहा है, बहरी जहाज़ों के ज़रिए भी हो रहा है और हेलीकॉप्टर के थ्रू भी हो रहा है। जी बिल्कुल, ये फिशरी तर्जुमान है जिनका कहना है कि 2 माहीगीरों की लाशें जो है वो मिल चुकी हैं और जो दीगर जो लापता माहीगीर हैं उनके अहल खाने से मुसलसल राब्ते में, हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। और जो 53 माहीगीरों की जो इतलात जो गर्दिश की हैं उसकी यकसा इन्होंने इस बात को मुस्तरद किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ 24 माहीगीर हैं जो लापता हैं जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। शुक्रिया आपने हमें आगाह किया। उधर कराची के इलाके कोरंगी के अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से जाँ बहक होने वाली 26 साल इस्मत की कहानी नया रुख इख्तियार कर चुकी है। इस्मत की मौत गलत इंजेक्शन की बजाय उसे ज्यादती का निशाना बनाने का इंकशाफ हुआ है। 26 साल इस्मत को 2 अफराद अपनी हफ्स का निशाना बनाकर टीबी वार्ड में छोड़कर फरार हो गए थे। कोरंगी इब्राहिम हैदरी की रिहायशी 26 साल अस्मत को गलत इंजेक्शन नहीं लगा बल्कि उसे दरिंदगी का निशाना बनाया गया। अस्मत की मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक कर दी गई। अस्मत नामी लड़की को कोरंगी सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में टीबी वार्ड के अंदर अस्पताल लैब के 2 मुलाजमीन ने अपनी हवस का निशाना बनाया और ज्यादती करने के 3 घंटे बाद अस्मत को जिन अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजिमान ने जाए वक़्वा से गलत इंजेक्शन और सिरिंज को भी छुपा दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े में मुलविस अस्पताल के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार अफराद का DNA टेस्ट किया जाएगा। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़ कराची। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, नशवा केस के मामले पर गिरफ्तार आगा मुइज नामी लड़के की फैमिली को हिरासा किया जाने लगा। आगा मुइज की बहन का वीडियो बयान सामने आ गया। मुइज की बहन अरीबा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। पुलिस स्टेशन से होकर आ रही हूँ और मैं अभी आगा मुइज से मिलकर आ रही हूँ। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और मैं निशवा की इस हालत में पूरे मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। मैं क्योंकि एक औरत होने के नाते, एक खातून होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मैं उसकी माँ का दर्द समझती हूँ। मैं भी उनके दर्द में उतनी ही शरीक हूँ और मैं उसको फील कर सकती हूँ। मैं उनके दुख में बहुत हद तक शरीक हूँ। मैं उनका हर तरीके से साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक बात समझ
नहीं आ रही। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि 2 हफ्ते से वो बच्ची ज़ेरे इलाज थी दारुसैयद अस्पताल में। मुइज़ 2 हफ्ते की छुट्टियों पे था। जिस दिन ये हादसा हुआ उसके अगले दिन से मुइज़ शादी की छुट्टियों पे था। इसको झूठ बोलकर बुलाया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिस टाइम पे ये ऑन ड्यूटी था उसका कोई केस नहीं बिगड़ा था, कुछ भी नहीं हुआ था। इसको झूठ बोलकर बुलाया गया और गैर मौजूदगी में, घर वालों की गैर मौजूदगी में इसको प्रेशराइज किया गया कि तुम ये स्टेटमेंट दे दो, हम तुम्हें बचा लेंगे। इसके सामने रोने धोने किए गए और हम लोगों को, बल्कि हम तो खुद विक्टिम हैं और हम तो, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मैं उसकी माँ का दर्द समझ सकती हूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ कि इस केस को, इसमें कुछ पेशरफ्त आए और जो असल मुज़लिम है या जो असल जिम्मेदार हैं वो सामने आए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब FIR इंतज़ामिया के नाम पे कटी हुई है और इस स्टेटमेंट में ये बात वाज़े लिखी हुई है कि इंतज़ामिया इसकी जिम्मेदार है, तो क्या इंतज़ामिया में सिर्फ मुइज़ शामिल था और कोई भी शामिल नहीं था? अगर वो एक माँ है तो मैं भी बड़ी बहन हूँ। मैंने उसको अपने मेरे लिए वो मेरी औलादों जैसा है, तो मेरी भी ये। और दूसरी जानिब आपको बताएंगे मरी की तारीखी दर्सगाह लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली में खत्ताती, पोस्टर मेकिंग और गुलकारी के मुकाबले हुए। हैदर अली की रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस कॉलेज मरी में हर साल की तरह मुख्तलिफ शहरों से आए हुए 15 स्कूलों के दरमियान उर्दू इंग्लिश खताती, पोस्टर मेकिंग, डांस के मुकाबले हुए। यहाँ पर आके हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे जो हमने फंक्शंस किए उनसे ये हुआ कि हमारी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं। इस तकरीब में बड़ी तादाद में तलबा और उस्ताज़ा के अलावा खुसूसी बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की। स्पेशल एजुकेशन के बच्चे जुनेद अब्बासी ने गुलकारी के जोड़ दिखाए, जिस पर हाजरीन खड़े होकर दाद देने पर मजबूर हो गए। तलबा और तलबात ने लॉरेंस कॉलेज की इस काविश को सराहा और कहा कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चे अपने टैलेंट को उजागर कर सकें। हम बहुत खुश हैं, ऐसे फंक्शंस होने चाहिए और इसी से बच्चों का मेंटल लेवल और बढ़ता है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, छुपे नगीनों को तलाश करने और इन्हें तराशने के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म की जरूरत है। हैदर अली खान, 24 न्यूज़, लॉरेंस कॉलेज मरी। आपको बताएं कि शब बारात आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। भी अदा किए जाएंगे। जिक्र अस्कार होगा, मुसलमान गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआएं मांगेंगे। आज है बख्शिश की रात, बरकतों और रहमतों वाली रात, मुसलमानों के गिड़गड़ाने की रात। बरकतों का नजूल होता है, रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, खताओं को माफ कर दिया जाता है, सिद्क के दिल से मांगी जाने वाली तमाम दुआएं कबूल होती हैं। शब बारात वो अजीम रात है जब रब्बुल इज़्ज़त सूरज गरूब होने के बाद आसमान अव्वल पर तशरीफ फरमा होते हैं और सुबह की अजान तक ऐलान करते हैं कि है कोई जो आज मुझसे मग़फ़िरत का तलबगार हो। इस बुलेटिन से इतना ही।